Hello everyone, this is Shruti. We are doing Polity series of M. Lakshmikant, and today we are going to do chapter 5, that is Preamble of the Constitution. So welcome back to CrackX, and let's start with our chapter 5. So Preamble of the Constitution is actually the modified version of objective resolution that has been passed by Jawaharlal Nehru that we have already covered in the previous chapter, that is in the making of the Constitution. So whatever objectives that the objective resolution placed by Jawaharlal Nehru was containing, it is just a modified, that is a modern version of that thing. Okay? It's very simple to understand that. So the preamble is the modern version of the objective resolution, and this modern version is being enshrined as in our constitution, and it is called as the identity card of the constitution. Why it is called as the identity card is because it is containing all those information about a constitution that tells about the identity of the constitution, like what type of constitution we are having, what type of government our country is going to have, these type of things, and what are the objective of the constitution is, whatever provisions our constitution is containing in itself, what are the objectives of that. So all these are the things which have been kept in the mind of the constitution makers in order to make a constitution like we have right now. Okay, so that is what we are going to study about. That is what was the idea that was there in the mind of the constitution makers, and what actually influenced the constitution makers, and what were the objectives and stuffs in their mind while making the constitution. You can just have a glance upon the preamble, and you would know that okay, this type of constitution India is having, because the preamble contains these things. What the preamble contains actually? The preamble in its present form reads as, "We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, faith, belief, worship, equality of status, opportunity, and promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation." So in our constitution assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution. So what are the things we can derive from the preamble itself? We can derive that we, the people of India, that means it is the people of India who is giving authority to the constitution in order to rule the country, right? Having solemnly resolved to constitute India into a sovereign. So these things, these bold capital letters that you can see, the words, it tells about the characteristics of our country, that what characteristics the constitution is based upon in order to contain the provisions through which the country is going to be ruled. So our country is sovereign, it is socialist, it is secular, it is democratic republic, and it secures. So now what are the objectives the constitution is containing? That its objective is to secure justice, which is the social justice, economic, political, liberty of what? Of thought, expression, belief, faith, worship, equality of what? Status, opportunity, and to promote them all, the fraternity. Okay? Fraternity is a very rooted idea that is to be in their country, because our country is such a diverse country. It needs to be stand up upon the fraternity. That is, there needs to be a brotherhood among all the people in order to have a country which is which is there for the welfare of the people, which is having very less conflict within it. So this is all the thing that we get to know with our preamble, कि फ्रैटर्निटी इंश्योर करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है कि अमंग ऑल द पीपल एक ब्रदरहुड हो, एक सेंस ऑफ फ्रैटर्निटी हो, सेंस ऑफ डिग्निटी हो,
यूनिटी हो, इंटीग्रिटी हो और पूरे नेशन का। तो एंड वी गेट टू नो फ्रॉम आवर प्रियम्बल ओनली कि कब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, इनैक्टेड, दैट इज on the 26th day of November 1949. The date of the adoption of the constitution is mentioned in the preamble itself. So these are the things that we can derive from the preamble. Okay, now we will be going to read in detail. We will be having a detailed explanation of what fraternity is, what democratic mean, what republic mean, what socialist mean, secular mean, integrity mean. So these are the things that we have to cover in the rest of the chapter, and then at last we will be going to cover कि हमारा preamble is eligible to be amended or not. Although there are 3 amendments that has already been done, so now you can know कि हाँ हमारा जो preamble है is a part of the constitution and it can be amended, क्योंकि already amendments हो चुके हैं. That means उसे constitution का part बताया जा रहा होगा तभी इसमें amendment होंगे. बट उस पर बहुत सारे क्रिटिसिजम्स थे जिस पे बहुत सारा सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया. दैट इज़ वी आर गोइंग टू कवर दैट एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर. तो अभी हमें बस ये जानना है कि द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द वन फ्रॉम विच द आइडिया ऑफ प्रियम्बल हैज़ बीन टेकन, क्योंकि इट वाज द फर्स्ट कंट्री टू हैव अ प्रियम्बल. ठीक है, तो हमारे इंडिया ने भी इस चीज़ को फॉलो किया एंड इट इज़ लाइक अ इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, जिसमें हमारे जो भी एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी समरी दी है. एंड एन ए पालकीवाला जो कि एक एमिनेंट जूरिस्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, वो प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. ठीक है, और हम मानते भी हैं इसे आइडेंटिटी कार्ड. तो प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मूव किया गया था एंड वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो. और इसमें अमेंडमेंट हुआ है, that is 3 words has been added by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, जिसमें socialist, secular और integrity word ऐड किया गया था हमारे preamble में. ओके, तो हमारे preamble की ingredients क्या है? दैट इज़ हमारा preamble 4 ingredients को रिवील करता है. दैट इज़ कि जो हमारे सोर्स ऑफ अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो preamble बताती है कि इट इज़ फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया. जो नेचर है हमारे इंडियन स्टेट का, वो डिक्लेयर करती है कि हमारा इंडियन स्टेट सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पॉलिटी है. ऑब्जेक्टिव्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के? ये स्पेसिफाई करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी. और डेट ऑफ एडॉप्शन दैट इज़ मैंशनड. तो ये हमने जब हमने प्रियम्बल पढ़ा था, तो दैट इज़ व्हाट वी डिराइव फ्रॉम इट एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़ गिवन. फिर कीवर्ड्स क्या हैं? कुछ कीवर्ड्स है जिनको बहुत ही इलेबोरेट फॉर्म में हम पढ़ने वाले हैं. दैट इज़ कि कुछ कीवर्ड्स ऐसे सोवरेन क्या होता है, सोशलिस्ट का क्या मतलब है, सेक्युलर व्हाट डज इट मीन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. सो दीज आर एक्सप्लेन्ड. दैट इज़ सोवरेन मतलब क्या? दैट इज़ यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी फॉर योर रूलिंग. दैट इज़ यू आर अ वेरी सोवरेन कंट्री, यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी country, and you are a independent dominion. That is what sovereign means. So sovereign implies कि India जो है it is not having any dependency nor a dominion of any other country or state. It is independent of that. ठीक है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट है हमारा इंडिया एंड इस पे ऊपर इसकी कोई अथॉरिटी नहीं है. इसके ऊपर जो इंडिया है, इंडिया के ऊपर किसी भी चीज़ का, किसी भी कंट्री का अथॉरिटी नहीं है. एंड इट इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर. ठीक है, चाहे वो इंटरनल मैटर का अफेयर हो या एक्सटर्नल अफेयर हो, इट इज़ द टोटल डिस्क्रिशन इज़ गिवन टू द कंट्री ओनली. दैट इज़ इट इज़ अ सोवरेन बॉडी. इस पर किसी के ऊपर, इसके ऊपर किसी का भी दबाव नहीं है, कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है. ठीक है, लेकिन 1949 में एज कि इंडिया ने declared कि constitution of her full membership of the commonwealth of the nation and accepted the British crown as head of the commonwealth. तो ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन है. इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक डोमिनियन की तरह चल रहे हैं जस्ट बिकॉज वी आर हैविंग अ मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ ब्रिटिश और उस कॉमनवेल्थ के हेड ब्रिटिश क्राउन है. इसका ज़रा भी, जो भी कंट्री उसके मेंबर है, इसका ज़रा भी मतलब ये नहीं है कि ब्रिटिश का कोई भी डोमिनेशन है किसी भी कंट्री पे. Every country that is a member of the Commonwealth is free in itself.
और इंडिया का मेंबरशिप जो यूनाइटेड नेशंस के साथ है वो भी किसी भी तरह से ये नहीं प्रूव करता है कि इंडिया इज़ नॉट अ सोवरेन बॉडी. इंडिया इज़ कम्प्लीटली अ सोवरेन बॉडी, ओके, अ सोवरेन कंट्री. ठीक है, क्योंकि कोई लिमिटेशन पुट नहीं होते हैं उसके सोवरेनिटी पर. एंड बीइंग अ सोवरेन स्टेट, इंडिया कैन ईदर एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी, चाहे वॉर करके चाहे किसी भी तरीके से. इट हैज़ ऑल द राइट टू एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी, या किसी भी अपने पार्ट को सीड करने की भी, मतलब अगर हम एक्वायर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ वाइस वर्सा थिंग ऑल्सो. अगर मेरा मन है कि हम कोई टेरिटरी ऐसा है मेरे पास दैट आई वांट टू गिव टू अनदर कंट्री, तो इट कैन ऑल्सो डू दैट. इट इज़ गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन because it is a sovereign body. It can make any rule it wants. It can do anything as per written in the constitution. ठीक है, favor of the foreign state. It can also give up its territory. Then it is a socialist. Socialist means, first of all, this term was added by the 42nd Amendment 1976. It is these provisions of socialist qualities as also containing in the directive principles of the state policy. Okay, and ठीक है, socialist pattern of society in its Adivasi session has also been declared by the Congress party. ठीक है, तो there are two types of socialism. एक होता है democratic socialism एंड दूसरा होता है कम्युनिस्ट सोशलिज्म. जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है ना, वो जो पावर है उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे ज़्यादा ध्यान देता है. दैट इज़ कि ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंटर होगा और वही सारी फर्म्स एंड जो भी इकोनॉमिक अफेयर्स है उसको अपने अंदर लिए रहेगा. इट इज़ लाइक अ इकोनॉमी वेयर यू आर हैविंग बोथ द सेंटर, दैट इज़ द गवर्नमेंट, एज वेल एज द प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो. सो देयर इज़ a mixed economy. When there is a mixed economy that has been practiced in a country, it is called as a democratic socialist country. That is it is following the principle of democratic socialism. और जहाँ पे communist socialism होता है वहाँ पे there is the सिर्फ nationalization रहता है. nationalization means सिर्फ वहाँ पर the country is having a government and that government is only responsible for all the economic affairs that is happening in the country. ठीक है, ठीक है. abolition of private property होती है, जो भी होता है वो गवर्नमेंट के अंडर होता है. बट इन आवर कंट्री वी फॉलो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है एंड बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की वजह से होता क्या है कि इट एम्स एट एंडिंग पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. क्यों? क्योंकि देखो, सोशलिज्म इज लाइक यू आर अगेंस्ट अ काइंड ऑफ नेशनलाइजेशन. दैट इज मीन कि कोई एक गवर्नमेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव है, अगर उसे सारी पावर्स दे दी जाए एंड देयर इज़ नो पावर इन द हैंड्स ऑफ पीपल इन टर्म्स ऑफ एनी इकोनॉमिक थिंग और इकोनॉमिक अफेयर, कोई डिस्क्रिशन नहीं है उस चीज़ पर. सो देयर इज़ अ लॉस ऑफ कंपटीशन. ठीक है, मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है एंड द कंट्री का जो गवर्नमेंट है इट इज़ सुप्रीम. नाउ इट इज़ सुप्रीम, सो इट कैन ऑल्सो मिसयूज इट्स पावर बिकॉज इट इज़ लाइक एन अनलिमिटेड पावर दैट हैज़ बिन गिवन इन वन हैंड ओनली. तो इसके वजह से कोई कंपटीशन नहीं है, सो इट विल डू वट एवर इट वॉन्ट्स, क्योंकि इस पर कोई प्रेशर भी नहीं है. सो दैट इज़ व्हाट नेशनलाइजेशन हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अ कंट्री एंड इट्स पीपल. तो इसके खिलाफ बोथ मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी है और गांधीयन आइडियोलॉजी है कि देयर इज़ अ गांधीज़म सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म सोशलिज्म. मार्क्सिज्म सोशलिज्म और गांधीयन सोशलिज्म इज़ मोर लाइक सिमिलर थिंग, बट एक डिफरेंस ये है कि मार्क्सिज्म इज़ फॉलो द पाथ ऑफ वायलेंस और गांधीज़म जो है वो फॉलो नहीं करता है वायलेंस को, वो नॉन वायलेंस को फॉलो करता है. ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द आइडियोलॉजीज. अदरवाइज जो सोशलिज्म का आइडियोलॉजी है वो काफ़ी हद तक मार्क्सिज्म और गांधीज़म का सेम ही है. ठीक है, लेकिन हमारी जो कंट्री है वो गांधीयन सोशलिज्म की ओर ज़्यादा झुकी हुई है. दैट इज़ वी डू नॉट यूज़ एनी काइंड ऑफ violence means or any kind of those things that is not under the Gandhian socialism. It is more like हम चीज़ें वही फॉलो कर रहे हैं लेकिन हम वो सभी नॉन वायलेंस के साथ पीसफुल प्रोटेस्ट या जो भी है दैट इज़ देयर फॉर द पीपल. बट
the country is having Gandhian socialism and not the Marxism. तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991, दैट इज़ द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसने थोड़ा सा सोशलिस्ट क्रेडेंशियल्स ऑफ द इंडियन स्टेट को डाइल्यूट किया. दैट इज़ नाउ वी आर हैविंग मोर ऑफ अ प्राइवेटाइजेशन. दैट इज़ देखो एक होता है कि गांधीयन सोशलिज्म में आप ये भी पाओगे कि आप मॉडर्नाइजेशन को सपोर्ट नहीं करते हो. ठीक है, गांधी जी मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और मशीनरीज को सपोर्ट नहीं करते थे. ही वाज लाइक कि अपने जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करके रखना, जो भी पुराने ट्रेडिशंस हैं उनको प्रिजर्व करके रखना, इवन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी और एनीथिंग, एनी एडवांसमेंट. सो आफ्टर द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 देयर वाज अ नीड फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज टू बी introduced in India and to be with that innovations. तो उसके लिए the liberalization, privatization and globalization, LPG reforms was made, and that is why now we are having a global kind of development in our country in the economy sector. That is, हम टेक्नोलॉजी भी मॉडर्न ऐड करते हैं, सारे मॉडर्नाइजेशन ऐड करते हैं, जो भी ग्लोबल आइडियोलॉजीज़ है, टेक्नोलॉजीज़ हैं, इन्फ्लुएंस है, वो सभी हम अपने कंट्री पर लागू करते हैं. सो दैट इज़ हाउ जैसे अभी हमने पढ़ा कि हमारा लीन करता है गांधीयन सोशलिज्म की ओर कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो थोड़ा डाइल्यूट हो गया बिकॉज नाउ वी आर सपोर्टिंग द मॉडर्नाइजेशन, राइट. देन आवर कंट्री सेक्युलर स्टेट. सेक्युलर मीन्स कि कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन इज़ नॉट फेवर्ड. ठीक है, irrespective of what is the composition of each and every religion, we are having equal rights for all the religious institution, for all the religion that has been practiced, irrespective of the population. कि हिंदू के पॉपुलेशन ज़्यादा है या देयर इज़ हिंदू इन मेजॉरिटी तो हिंदू को ज़्यादा फेवर किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. जितने भी रिलीजन प्रैक्टिस जो होते हैं हमारे कंट्री में, आर कंट्री बिलीव इन सेक्युलरिज्म. दैट इज़ हर एक रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाता है एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है. एंड इसके साथ साथ कई सारे आर्टिकल्स पे जो है रिलेटेड हैं जो प्रूव करती है कि आर कंट्री इज़ परफॉर्मिंग अ सेक्युलर स्टेट. एंड जस्ट बिकॉज वी आर द सेक्युलर स्टेट, और क्योंकि प्रियम्बल हमारे एक आइडेंटिटी कार्ड है, तो एक नीड पड़ा कि ये वर्ड हमारे प्रियम्बल में भी मेंशन होना चाहिए इन ऑर्डर टू शो कि जो भी प्रियम्बल पढ़े उसे पता हो कि जो हमारा कंट्री है वो सेक्युलरिज्म फॉलो करता है, क्योंकि वो सेक्युलर वर्ड वाज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इसीलिए सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. ठीक है, एंड इन 1974 सुप्रीम कोर्ट ने वही बात बोली थी कि एक्सप्लिसिट मतलब बिल्कुल मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड. बट कोई डाउट नहीं है ऐसा कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स नहीं चाहते थे, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चाहते थे एक सेक्युलर स्टेट को इस्टेब्लिश करना. सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है, सेक्युलर प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है. जैसे आर्टिकल 25 है, 28 है, और भी बहुत सारे आर्टिकल्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो गया, आर्टिकल 16 हो गया, आर्टिकल 17 हो गया. सो देयर आर सो मैनी आर्टिकल्स जो एसोशिएट करता है हमारे सेक्युलर होने पे. ठीक है, हर रिलीजन को irrespective of their strength सेम स्टेटस और सपोर्ट मिलता है. नाउ डेमोक्रेटिक पॉलिटी स्टिपुलेटेड इन प्रेम्बल है, जो कि क्या बताती है. अब डेमोक्रेटिक क्या होता है, तो डेमोक्रेटिक भी इज लाइक ऑफ टू टाइप्स. ओके, दैट इज पावर जो है वो पीपल के अंडर होगा, बट वी फॉलो इनडायरेक्ट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी. That is, there are two types of, that is direct and indirect, in which we follow the indirect type of democracy. So indirect democracy is also known as a representative democracy, in which the supreme power is thus carried on the government and to make laws. ठीक है, ये इस type of democracy को representative democracy कहा जाता है. और ये this indirect democracy is further subdivided into two, that is the parliamentary and the presidential form of गवर्नमेंट. दैट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट में ये बस छोटा सा अंतर है कि डायरेक्ट में पीपल एक्सरसाइज करते हैं डायरेक्टली. जैसे कोई एक एक मेमोरेंडम ले गए, जैसे रेफरेंडम हो गया, इनिशिएटिव हो गया, रिकॉल हो गया, प्लेब्लिसिट हो गया. तो ये कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें डायरेक्ट कंट्रोल होता है पीपल के पास. अगर उनको
लग रहा है कि द गवर्नमेंट इज़ नॉट एक्टिंग राइट, ठीक है, वो सही से काम नहीं कर रही है, तो कि कुछ प्रोविजंस दें। अगर गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग गुड या जो भी तो है, कुछ मोशंस है जो पास होते हैं एंड देन वो अपने टर्म के कंप्लीशन से पहले गिर सकती हैं, बट यहाँ पे पीपल एक्सरसाइज करते हैं उस पावर को। दैट इज़ इट इज़ कॉल्ड अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न नहीं होता है, बट बल्कि पीपल होते हैं जो एक पीपल के हाथ में ये डायरेक्टली डिसीजन और डिस्क्रिशन होता है कि वो कुछ बिल पास करेंगे या कुछ ऐसा मोशन पास करेंगे जिससे बाय पीपल, नॉट बाय रिप्रेजेंटेटिव्स। लाइक पीपल डायरेक्टली ऐसा कुछ करेंगे थ्रू वोटिंग और समथिंग कि वो सरकार अपने टर्म के कंप्लीशन से पहले भी हटाई जा सकती। सो दिस इज़ व्हाट डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज। बट इनडायरेक्ट में क्या होता है कि देयर आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या इनडायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं बाय द पीपल, जो जाते हैं एंड वो सारे काम करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, ठीक है। किसी सरकार को हटाना हो या कुछ भी ऐसा चीज़ है, सवाल उठाने हो तो या कुछ भी होता है, तो पीपल डू नॉट आस्क डायरेक्टली, बट दे हैव देयर रिप्रेजेंटेटिव सिटिंग इन द लोकसभा और राज्यसभा वेयर they ask questions on behalf of the people who have elected them और उनके आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज़ व्हाट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलता है। दैट इज़ वी आर हैविंग अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी एंड जिसमें एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ठीक है, फॉर इट्स पॉलिसीज़ एंड एक्शन। जो भी एक्शन और पॉलिसीज़ द एग्जीक्यूटिव इज़ टेकिंग, इट हैज़ टू be responsible to the legislature. That is, it is totally answerable to the legislature. And universal elder franchise is practiced. Periodic elections are done. Rule of law is followed. Independence of judiciary is there. और ये सारा हमने बहुत ही अच्छे से कवर किया है इस लाइक प्रीवियस वीडियोज़ में, तो इसे इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आई डोंट थिंक ये नीड है। एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द ऑन सर्टेन ग्राउंड, दैट इज़ रेस, कास्ट, रिलीजन, रीजन एंड मैनिफेस्टेशंस ऑफ डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी, ठीक है। डेमोक्रेटिक कैरेक्टर फॉलो होता है, दैट इज़ अथॉरिटी पीपल के हाथ में है, समथिंग लाइक दैट। इंडिपेंडेंस है, प्रोटेक्शन है, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये जो टर्म डेमोक्रेटिक है, इसे ब्रॉडर सेंस में नॉट ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट इट इज़ ऑल्सो सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। दैट इज़ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में तो ये है ना कि आपको एडल्ट फ्रेंचाइज दिए जा रहे हैं, यू आर नॉट फेसिंग एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरसाइजिंग एनी पॉलिटिकल राइट। बट सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट in the broader sense. When we say we are having a democratic country, it does not mean that we are just having a political democratic country, but we are having a social and economic democracy also, in which the political democracy तब तक लास्ट नहीं कर सकती है जब तक कि वो सोशल डेमोक्रेसी के ऊपर बेस्ड ना हो, ठीक है। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी पीपल को दी हुई हो, दैट इज देयर वेलफेयर इज ऑलवेज इन द प्रेफरेंस, ठीक है। उनके वेलफेयर को हमेशा प्रेफरेंस में रखा जा रहा है बाय गिविंग देम लिबर्टी, बाय गिविंग देम इक्वल अपॉर्चुनिटीज, बाय गिविंग बाय प्रमोटिंग फ्रैटर्निटी, ठीक है। और ये जो तीनों है ये एक ट्राइनिटी बनाते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी को एग्जिस्ट। क्योंकि अगर लिबर्टी है और इक्वालिटी नहीं है तो देयर इज़ इम्बैलेंस। क्योंकि अगर लिबर्टी होगा तो एक सर्टेन सोसाइटी होगी, एक सर्टेन क्लास होगा, जो पावरफुल क्लास होगा तो वही सिर्फ पावर एक्सरसाइजेस करेगा, ठीक है। अगर इक्वालिटी नहीं हुई तो इक्वालिटी है तो लिबर्टी नहीं हुआ तो इसका इक्वालिटी का कोई मतलब ही नहीं बनता, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू डू व्हाट यू वांट, देयर आर सो लिमिटेशंस ऑन योर प्रैक्टिसेस एंड राइट्स कि आप अपने राइट्स जब एक्सरसाइज ही नहीं कर पा रहे हो तो इक्वालिटी का मतलब ही क्या है। एंड जब तक इक्वालिटी और लिबर्टी नहीं होगा तो फ्रैटर्निटी कहाँ से आएगा, हाउ पीपल विल फील डिग्निफाइड। क्योंकि अगर इक्वालिटी नहीं है, जैसे पहले के सोशल सिस्टम में इक्वालिटी नहीं था, सो देयर वर पीपल हु वर सो मच ऑफ आउटकास्टेड, हु वर सो मच डिग्रेडेड, जिनकी कोई डिग्निटी हमारे सोसाइटी में नहीं थी। सो इस चीज़ को एबॉलिश करने के लिए तीनों ही एक साथ ज़रूरी है टू मेंटेन ईच अदर। लिबर्टी को मेंटेन करने के लिए इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इज़ एज मच इम्पॉर्टेंट एज टू मेंटेन द इक्वालिटी। लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी इज़ इम्पॉर्टेंट। सो दीज आर द थिंग्स।
ठीक है, इनको सेपरेटली आप नहीं देख सकते हो। ओके, एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मीन्स कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इकोनॉमिकली इक्वालिटी प्रोवाइड करे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी हो फॉर जॉब्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, एनी बडी दैट वांट्स टू प्रैक्टिस, उनको पूरी ये डिस्क्रिशन हो, एक मतलब इक्वल वेजेस हो, ये सभी चीज़ें इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के अंडर आती है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। देन देयर इज रिपब्लिक। रिपब्लिक सिंपली मीन्स कि जो हमारे कंट्री का हेड है या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बट इलेक्टेड होना चाहिए बाय द पीपल, दैट इज़ व्हाट रिपब्लिक मीन्स। सो हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटी में मोनार्की और रिपब्लिक होता है। मोनार्की में द हेड ऑफ द स्टेट इज़ नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, द पोजिशन इज़ हेरिडेटरी, दैट इज़ द किंग और क्वीन इज़ द हेड ऑफ द कंट्री एंड वो हेरिडेटरी पोजिशन है। दैट मीन्स किंग मरेंगे तो उनका बेटा थ्रोन को संभालेगा, उसमें पीपल का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, पीपल चूज नहीं कर रहे, दैट पोजीशन इज ऑटोमेटिकली हेरिडेटरी। लेकिन रिपब्लिक में यू हैव ऑलवेज हैव पीपल ऑलवेज हैव द डिस्क्रिप्शन कि आप हेड अपने कंट्री के हेड को चूज कर सकते हो थ्रू इलेक्टेड डायरेक्ट इलेक्शन और थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, जैसे कि हमारे कंट्री में और यूएसए में हम रिपब्लिक फॉलो करते हैं, वहाँ हमारे भी कंट्री का जो हेड है वो प्रेसिडेंट एंड यूएसए के भी कंट्री का हेड प्रेसिडेंट एंड बोथ आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो वहाँ प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड यूएसए में एंड इन आवर कंट्री आवर प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बट इनडायरेक्टली। ओके, वो डायरेक्टली हम नहीं इलेक्ट करते हैं, देयर आर इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं एंड दे इलेक्ट द प्रेसिडेंट, दैट इज आवर हेड। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सी ये कन्फ्यूज़न मत पालिएगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज ऑलवेज प्राइम मिनिस्टर इन टर्म्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो हम फॉलो करते हैं। तो हमारे कंट्री का हेड प्रेसिडेंट है, हमारे गवर्नमेंट का हेड इज ऑलवेज प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, वाइल प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जो कि यूएसए में फॉलो होता है, कंट्री और गवर्नमेंट दोनों का ही हेड प्रेसिडेंट होता है। देन देयर इज जस्टिस। जस्टिस मीन्स in three terms, that is social, economic and political justice। ठीक है, इसको काफ़ी वेरियस प्रोविजंस के थ्रू इंश्योर और सिक्योर किया गया है, दैट इज़ थ्रू फंडामेंटल राइट्स, थ्रू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये दोनों हमें जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। क्यों? बाय लिमिटिंग सम द फंडामेंटल राइट्स लिमिट्स द पावर ऑफ द स्टेट। तो वो इन टर्म्स इन ऑर्डर टू गिव अस सम काइंड ऑफ जस्टिस, उसी तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट को या डायरेक्टिव्स देता है इन ऑर्डर टू इंश्योर एंड सिक्योर आर जस्टिस, कि इस तरीके से गवर्नमेंट के प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को बनाया जाए कि वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो, पब्लिक के वेलफेयर के लिए हो और उनको जस्टिस दे सके। तो सोशल जस्टिस डिनोट करता है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन, कि एक इक्वल ट्रीटमेंट हो विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन, कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स या किसी भी ऐसी चीज़ों पर, यानी कि एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज हो एंड किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन को बहुत ज़्यादा पावर ना मिले। देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमॉन्ग ईच एंड एवरी सोसाइटी इन ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और इम्प्रूवमेंट हो इन द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। तो बैकवर्ड क्लासेस के इम्प्रूवमेंट के लिए दे माइट गेट सम मोर पावर और लाइक रिजर्वेशन और समथिंग इन ऑर्डर टू ब्रिज बिटवीन द हायर सोशल कास्ट जो कि शुरू से चलते आ रहे हैं एंड द बैकवर्ड क्लासेस जिन्हें अच्छे से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में या गवर्नमेंट की किसी भी फील्ड में, तो उन्हें वो रिप्रेजेंटेशन मिल सके सो दैट दे कुड ऑल्सो गेट दैट इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी एज एवरीबडी इज हैविंग। इसीलिए दे गेट रिजर्वेशन और सम मोर प्रिविलेजेस दैन द वंस हु आर ऑलरेडी हैविंग दैट that dignified status in the society। तो बस डिग्निटी इंश्योर करने के लिए they get some more benefit। तो वो सोशल जस्टिस के खिलाफ नहीं है, बिकॉज इट इज़ what it is doing, इसका रिजल्टिव पर्पस क्या है वो फुलफिल हो रहा है एंड इट्स पर्पस इज टू give ensure absence of privileges and against the social discrimination and distinction। तो यहाँ पे
अगर आप बैकवर्ड क्लासेस को कुछ पावर्स देकर एब्सेंस फुलफिल, ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है जहाँ एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज होता है और सोशल डिस्टिंक्शंस ख़त्म होती हैं, तो इट इज़ ओके. दैट इज़ व्हाट सोशल जस्टिस इज इंश्योरिंग. इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट्स नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर. ठीक है, किसी भी इकोनॉमिक फैक्टर के वजह से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. दैट इज़ कि वेल्थ में इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, इनकम में इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर्टी में इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए. और इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए 31 जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट था, 31 जो हमारा आर्टिकल था, दैट वाज रिपील्ड एंड थ्रू अमेंडमेंट उसे फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1951, उसे लीगल राइट में बदल दिया गया थ्रू आर्टिकल 300A ऑफ पार्ट 12. तो ये अभी फंडामेंटल राइट से हमारा प्रॉपर्टी वाला चीज़ जो था वो हट गया था, बाई इन ऑर्डर टू इंश्योर द इकोनॉमिक जस्टिस. ठीक है. पॉलिटिकल जस्टिस इम्प्लाई करता है कि सारे सिटीज़न को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले, इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिसर्स हो, इक्वल वॉइस हो गवर्नमेंट में. ठीक है, यानी कि थ्रू कैसे एडल्ट फ्रेंचाइज है, जो भी 18 ईयर्स के अबव है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी कास्ट, कलर, रिलीजन आप किसी से भी बिलोंग करते हो, यू आर एबल टू वोट, है ना, और यू आर एबल टू कंटेस्ट इलेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट society you are representing, what community you are representing, what is the majority of that community, which community you belong, it doesn't matter. आपको वही इक्वल प्रिविलेजेस, पावर्स और वही इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जो बाकी सबको दी जाती है. तो दैट इज़ व्हाट द पॉलिटिकल जस्टिस इज. तो आइडियल ऑफ जस्टिस इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. और इससे रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में जो हुआ था, रशियन रिवॉल्यूशन, इससे इन्फ्लुएंस होकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया. Then there is liberty. Liberty has been taken from the French Revolution. Okay. So liberty का मतलब ये होता है कि absence of restraint in the activity of individual, कि individual कोई भी एक्टिविटी कर रहा है उसमें कोई रोक टोक, बाधा या दिक्कत परेशानी उसे नहीं हो रही. वो जो भी करना चाहता है वो कर पा रहा है अपनी डिस्क्रिप्शन, अपने पर्सनल चॉइसेस के हिसाब से. अगर आपको कोई प्रैक्टिस करना है, प्रोफेशन, तो ये लिबर्टी का आइडिया बेसिकली आपको आर्टिकल 19 में ज़्यादा देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप प्रैक्टिस ऑफ हैव एनी एसोसिएशन, आप कोई एसोसिएशन बनाना चाहते हो, उसमें कोई बाधा ना मिले आपको. आप कहीं भी जाकर रहना चाहते हो, उसमें कोई बाधा ना हो. दैट राइट टू मूव, राइट टू रिसाइड इन एनी प्लेस. तो ये सारी चीज़ें लिबर्टी को इंश्योर करती है कि आप जो भी करना चाहते हो उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं मिले. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो. देयर आर सम लिमिटेशन दैट हैज़ ऑल्सो बिन पुट अप ओवर देयर इन ऑर्डर टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. कि अगर आप किसी भी तरीके से सोशल ऑर्डर को बिगाड़ रहे हो जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको लिबर्टी दी गई है, आपको फ्रीडम दिया गया है, तो दैट विल नॉट कम अंडर द लिबर्टी. दैट विल नॉट कम अंडर कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप मिसयूज़ नहीं कर सकते, आप वो चीज़ें नहीं कर सकते हो जो किसी दूसरे को हार्म पहुंचा रही है या किसी दूसरे के पीस में बाधा बन रही है या किसी दूसरे की लिबर्टी को हार्म कर रही है. ठीक है, इसका मतलब जैसे आपको दिया गया है कि आप कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो, इसका मतलब आप गुंडागर्दी नहीं कर सकते, आप कहीं भी जाकर रह सकते हो. इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के भी घर में ज़बरदस्ती घुस कर रहने लग जाओ. सो दीज आर नॉट द थिंग दैट कम्स अंडर लिबर्टी. सो ये कुछ लिमिटेशंस के अंडर आता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में खुद ही दिया गया है कि कौन कौन से लिमिटेशंस हैं आपके राइट्स पे, आपके फ्रीडम पे. ठीक है, एंड ये इन्फोर्सेबल है इन कोर्ट ऑफ लॉ अगर इसका वायलेशन होता है तो, बिकॉज इट इज़ गिवन इन द फंडामेंटल राइट दैट इज़ लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, थॉट, राइट. And it is given in order to provide opportunity for the development of individual personality. अगर आपको आज़ादी ही नहीं दी जाएगी, आपको करने ही नहीं दिया जाएगा जो आप चाहते हो, तो फिर आपकी पर्सनैलिटी, आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट कैसे आएगा. सो इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट लिबर्टी इज़ बीइंग गिवन टू यू, तो इट इज़ गिवन टू यू सो दैट अ गुड पॉजिटिव इम्पैक्ट कुड बी डन इन द सोसाइटी एंड नॉट कि आपको कोई लाइसेंस मिल गया है एंड यू आर मिस यूजिंग इट एंड हार्मिंग अदर पीपल्स लाइफ. आप सोशल ऑर्डर नहीं बिगाड़ सकते हो बस. ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ सेड कि
फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। ये बेस्ड है सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में। वो रिस्ट्रिक्शंस में भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है बिकॉज इट इज़ हैविंग अ रीज़न दैट इज़ you must not disrupt any social order, any public order. Okay. Idea of liberty, equality, fraternity जो हमारे preamble में enshrined है, that has been taken from the French Revolution of 1789 and 1799 to 1799, and equality is there. So rest of the chapter will cover in the next video, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बस अब कुछ ही एक दो चीज़ें बची हैं और लास्ट में we will be knowing कि प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। सो उसके बाद हमारा चैप्टर इज़ गोइंग टू एंड एंड लास्ट में यू विल बी गेटिंग द रोड मैप। तो हम इक्वालिटी एंड बाकी जो भी फैक्टर्स हैं उसे अगले वीडियो में कवर करेंगे। और बस अब इक्वालिटी ऑफ फ्रेटर्निटी बचा है एंड दैन वी विल बी डूइंग द सिग्निफिकेंस एंड वेदर इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चीज़ें कवर करेंगे एंड बिफोर दैट कि आप नेक्स्ट वीडियो देखो, मेक श्योर यू रिवाइज एंड रिमेंबर ऑल द थिंग दैट यू हैव लर्न टुडे। मेमोराइज करें ऐसे एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू।